Hello, good morning. Lastly, start the chapter line. Study the first one, equation of line passing through the point and parallel to the vector. Second one, equation of line passing through the 2 points. First one, equation of line passing through the point and parallel to the vector. It's a vector form equation is r bar equal to a bar plus lambda b bar. A bar is the position vector of passing through the point. B bar is the parallel vector. R bar is the position vector of the locus point. Okay, this is a vector form equation. It's a Cartesian form is x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c. This is the Cartesian form equation of line passing through the point x1, y1, z1, and direction ratios of parallel vector is ABC. These are the direction ratios. This is the vector form equation of line passing through the point and parallel to the vector. Second formula is equation of line passing through the 2 points. Suppose the points are A and B. Its vector form equation is r bar equal to a bar plus lambda in bracket b bar minus a bar. Its a Cartesian form equation is x minus x1 upon b bar minus a bar, x2 minus x1 equal to y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1. Comparison between the first and second Cartesian, numerator is the same. Denominator here a मतलब x2 minus x1 है, b means y2 minus y1 and c means z2 minus z1. ये फॉर्म में lastly study these two equations. Okay, write the third point. Equation of line passing through the point. Passing through point A in bracket A bar. That is the third point, equation of line passing through the point A in bracket A bar and perpendicular to vector, perpendicular to B bar and C bar. Important point here, condition perpendicular. This one, first one, this is a parallel vector. Here passing through the 2 points. Here passing through the point A and perpendicular to B bar and C bar. Its equation is R bar equal to A bar plus lambda m bar. But m bar equal to B bar cross C bar. To find the cross product of the perpendicular to form a parallel vector. Here perpendicular to B bar and C bar. But we require the parallel and available is what? Perpendicular. If you find out the cross product of the perpendicular means to form a parallel vector. Remember this for the lines, means if we want the equation of line then we require the parallel vector. But suppose the condition we have given the perpendicular, then perpendicular vectors cross product to form a parallel vector. Okay, जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट में स्टडी किया है, ये परपेंडिकुलर है, ये फाइंड करना है, मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ना हम. सेम यहाँ पर पैरेलल के लिए हमें ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर वेक्टर लेना है. प्लेन में इसके अपोजिट आएगा, लाइन में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर मीन्स टू फॉर्म अ पैरेलल वेक्टर. राइट डाउन द हियर, बट m bar means a cross product of the B bar and C bar. Point number 4. Write down the fourth point. If the direction ratios of the two lines are A1, B1, C1 and second A2, B2, C2, then
angle between the lines, angle between the lines cos theta equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 अपॉन, यही फॉर्मूला हमने स्टडी किया था वेक्टर में, यही स्टडी किया 3D में, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू सेकंड रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल. Next one, point number 5. If the lines are perpendicular, then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. कहां से आया परपेंडिकुलर? मतलब ये थीटा का वैल्यू 90, cos 90 क्या होता है? What is the value of cos 90? 0. 0 into this डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0. मतलब वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट? 0. वही लिखा है. नंबर 6, इफ द लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, देन डायरेक्शन रेशियोज आर इन प्रपोर्शन. a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. This is a condition of parallel lines. At the example हो गया सब लोगों का, नोट करके. कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, एंगल बिटवीन द टू लाइंस. ये शॉर्टकट समरी हमें चैप्टर की पता चाहिए. Write the example. Find the equation of line. Find the equation of line passing through the point. Passing through the point -1, -1, 2 and parallel to the line. And parallel to the line 2x minus 2 equal to 3y plus 1 equal to 6z minus 2. 2x minus 2 equal to 3y plus 1 equal to 6z minus 2. हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन. राइट है? वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन या पैरेलल टू द वेक्टर आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार. दिस इज द पैरेलल वेक्टर. बट ये बी बार कैसे होता है? बी बार होता है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के. मतलब ये पैरेलल वेक्टर में ए बी सी होता है और ये वेक्टर में आईजे के है क्या? नहीं. दिस इज द वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म. बट वी नो दैट स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इज व्हाट? x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू. ये फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म होता है. मतलब ये स्टैंडर्ड कार्टेशियन है या नहीं है? मीन्स दिस इक्वेशन फर्स्ट वन कन्वर्ट इज दिस फॉर्म. After that, write the vector form and Cartesian form. Question here, remember, find the equation of line है. Means find out the vector form and Cartesian form equation of the line. We have given the line passing through the point, मतलब A point -1 -1 2.
ये स्केलर में है, वी नो दैट स्केलर फॉर्म x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट ऑफ पासिंग थ्रू द पॉइंट। इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन का इक्वेशन है 2x - 2 = 3y + 1 = 6z - 2। This is without IJK, मतलब this is the Cartesian form, but standard Cartesian is this type. Means convert is this form, means look this equation and decide the operation. Look here, everywhere coefficient of x, y, z is a 1. Means convert the coefficient of x, y, z is a 1. This is the first operation. Means here common 2 in bracket x minus 1. Here common 3 in bracket y plus 1 by 3. Here common 6 z minus 2 by 6. 2 by 6 मतलब 1 by 3. बैलेंस है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर हुआ? बट here coefficient 1 मतलब remove these 2. We want the denominator term also. Denominator term मतलब direction ratios of the parallel. ये पैरेलल वेक्टर होता है, मतलब आपको पैरेलल वेक्टर लेना है तो कार्टेशियन के डिनोमिनेटर की वैल्यू चाहिए। मीन्स इक्वेशन ये फॉर्म में चाहिए 2 × x - 1, दिस इज रिटर्न एज x - 1 डिवाइड बाय 1/2। ये मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2/1 होगा, मतलब यही आएगा ना। सिमिलरली दिस इक्वेशन y + 1/3 upon 1/3, z - 1/3 upon 1/6, करेक्ट है। एंड दिस इक्वेशन इज कंपेयर टू x - x1 upon a equal to y - y1 upon b equal to z - z1 upon c। से कंपेयर होगा ये। मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एबीसी? एबीसी का वैल्यू क्या आएगा? 1/2, 1/3, 1/6। दिस इज ऑल्सो रिटर्न एज 3, 2, 1। एक द एलसीएम लिया तो क्या आएगा? 6 आएगा। मतलब मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 से करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई करना है क्या? नहीं, 1। मतलब ये 3 to 1 भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। ये एबीसी का वैल्यू है, मतलब हमें पैरेलल वेक्टर मिलेगा। देयरफॉर बी बार इक्वल टू व्हाट इज द वेक्टर बी? बी बार इक्वल टू व्हाट? 3i plus 2j plus k using point A. What is the A bar? A bar क्या आएगा? A bar is -i minus j plus 2k। ये वेक्टर ये आया। हमें फाइंड द इक्वेशन मीन्स फाइंड द वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन। फर्स्ट वन, राइट द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाइन इज r bar इक्वल टू a bar प्लस लैम्बडा b bar। ये है वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाइन। r bar इक्वल टू a bar is -i minus j plus 2k प्लस लैम्बडा मल्टीप्लाई b bar है 3i plus 2j plus k। ये है वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाइन, करेक्ट है। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है? कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन। कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाइन। कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन है x - x1 upon a इक्वल टू y - y1 upon b इक्वल टू z - z1 upon c। x1 y1 z1 का वैल्यू अवेलेबल है, देयरफॉर x1 का वैल्यू है -1 माइनस प्लस 1। ए का वैल्यू, एबीसी का वैल्यू, एबीसी का वैल्यू देखो क्या है? 3 लिख सकते हैं ना, या 1/2 आपके ऊपर डिपेंड है। 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, वही फॉर्म में आएगा। इक्वल टू y - y1 का वैल्यू -1 माइनस प्लस 1 अपॉन बी ए 2 z - 2 डिवाइडेड बाय 1। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। समझ में? चलो कैरी ऑन, राइट दिस करेक्ट। चेक करो करेक्ट है या नहीं। कैसे चेक करोगे? हमें आंसर चेक करना है करेक्ट है। पासिंग थ्रू द पॉइंट से सेटिस्फाई होना चाहिए, ऑल इक्वल आना चाहिए। मतलब x का वैल्यू -1 प्लस 1 0 अपॉन एनी टर्म। y का वैल्यू देखो क्या है? -1 प्लस 1। z का वैल्यू है 2 - 2
सब सेटिस्फाई होता है, मतलब ये करेक्ट है, ये है कार्टेशियन, ये है वेक्टर फॉर्म। चलो राइट द नेक्स्ट वन, सब लोगों का हो गया कंप्लीट। राइट द नेक्स्ट वन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी द कार्टेशियन इक्वेशन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, the Cartesian equation of line is 3x minus 1 equal to 6y plus 2 equal to 1 minus z. 3x minus 1 equal to 6y plus 2 equal to 1 minus z. Find the direction ratios. Find the direction ratios and write in a vector form. And write in vector form. Means here two sub questions. First one, find out the direction ratios of a line, and second one, convert in the vector form. करेक्ट कि नहीं? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है, मींस गिवन इक्वेशन कन्वर्ट इज दिस फॉर्म, y अवेलेबल इज कार्टेशियन एंड स्टैंडर्ड कार्टेशियन इज दिस टाइप, एंड डिनोमिनेटर वैल्यू मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबीसी? डायरेक्शन रेशियोज। ये आपका क्वेश्चन है ना। सेकंड क्वेश्चन इज टू राइट इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाइन r बार इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा b बार, ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है। First write is this form. This is the given equation. So now tell me the operation. क्या करोगे अभी? ये फर्स्ट एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट हमें क्या चाहिए? 1 डिवाइड ईयर कॉमन 3 x माइनस 1/3 इक्वल टू 6 इन ब्रैकेट y प्लस 2/6, मतलब
1 by 3 equal to minus 1 common z minus 1. We want coefficient of z is a plus 1, that's why the minus 1 common. Next one, x minus 1 by 3 divided by 1 by 3. Correct है, balance है. Equal to y plus 1 by 3 upon 1 by 6. Z minus 1 upon minus 1, that is the minus 1. Correct है. This equation is a compare to, किससे compare हो रहा है? x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c. Therefore, the direction ratios are represented as ABC. And what is the practical value of ABC? 1 by 3, 1 by 6, minus 1. और ये नहीं रहा तो क्या हो सकता है? राइट, 2, 1, minus 6. ऐसा समझ में कहां से आया? टेक द एलसीएम, मल्टीप्लाई बाय 2. ये डायरेक्टली एज इट इज 1. ये 6 यहाँ पे 6 चाहिए, मल्टीप्लाई 6, 2 1 minus 6. These are the direction ratios. Second question is what? Vector form. Vector form equation of the line. Line passing through the point मतलब x1 y1 z1. x1 y1 z1 का वैल्यू बोलो. कंपेयर किया, x1 का वैल्यू क्या है? 1 by 3. y1 का वैल्यू है minus 1 by 3. z1 का वैल्यू है 1. राइट है. यूजिंग दिस a bar equal to what? 1 by 3i minus 1 by 3j plus k. a bar आ गया. b bar क्या आएगा? ये डायरेक्शन रेशियोज ना. b bar आएगा 1 by 3i, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं. चलो मैं ये लिखता हूं. क्या लिख सकते हैं आप? 2i plus j minus 6k. करेक्ट है ना? नेक्स्ट वन, वेक्टर फॉर्म इक्वेशन. वेक्टर फॉर्म क्या आएगा? वेक्टर फॉर्म r bar इक्वल टू a bar प्लस लैम्डा b bar. r bar इक्वल टू a bar है 1 by 3i minus 1 by 3j plus k plus lambda multiply b bar is 2i plus j minus 6k. This is the vector form equation. Correct है? चलो very good. Write down step by step. Complete. Very good.
यहाँ पे क्वेश्चन था फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशोज एंड वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड किया डायरेक्शन रेशोज एंड वेक्टर फॉर्म इक्वेशन। At the next one, find the equation of line. Find the equation of line passing through the point. Passing through the point I plus 2j plus 3k. पॉइंट का डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर गिवन है, आईजे के मतलब वेक्टर फॉर्म में गिवन है, एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स, and perpendicular to the vectors I plus j plus k and 2i minus j plus k, and perpendicular to the vectors I plus j plus k and 2i minus j plus k. Passing through the point, the position vector considering the vector A, I plus 2j plus 3k. Next perpendicular vector, suppose the first B bar, I plus j plus k, and the vector C is right hand. We know that equation of line passing through the point and parallel to the vector, not directly available perpendicular. But we know the condition, if the vectors are perpendicular, then parallel vector is a cross product of perpendicular. Right है कि नहीं? It's a cross product. Determinant. Cross product रहा तो determinant. First row में होता है ij के. Second row element of b bar. B bar के element 1 1 1. C bar के element 2 minus 1 1. Solve the determinant I in bracket. Tell me I in bracket 1 minus minus plus 1 minus j in bracket 1 minus 2 plus k in bracket what minus 1 minus 2. समझ में आया? सिंप्लीफिकेशन बोलो क्या आ रहा है 2i minus 1 into minus j plus j minus 3k. ये आ गया पैरेलल वेक्टर m बार. Vector form equation. First write the vector form. Vector form equation r bar equal to a bar plus lambda into parallel. Parallel denoted as m bar. ये मैंने कंसीडर किया ना, m bar मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर. r bar equal to a bar है I plus 2j plus 3k. यह है वेक्टर a प्लस लैम्बडा मल्टीप्लाई एम बार है 2i प्लस j माइनस 3k. ऐसे है, ये होगा वेक्टर फॉर्म. अभी हमें क्या फाइंड करना है? कार्टेशियन फॉर्म. सेकंड वन है कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन. फर्स्ट वन राइट द स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म. x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c. x1 y1 z1 का वैल्यू बोलो क्या आएगा? हेलो, x1 का वैल्यू क्या है? x1 वह समझ में x1 y1 z1 पासिंग थ्रू द पॉइंट. अरे ये 1 2 3 है, ये पैरेलल वेक्टर है. abc का वैल्यू 2 1 minus 3 है. Here x1 y1 z1 मतलब पासिंग थ्रू द पॉइंट. ये पासिंग थ्रू द पॉइंट है ना, 1 2 3 एंड डिनोमिनेटर जो मिला मतलब लैम्बडा मल्टीप्लाई abc का वैल्यू है 2 1 minus 3. पुट इन दिस इक्वेशन x माइनस x1 मतलब 1 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू है 2 इक्वल टू y माइनस y माइनस 2 divided by b 1 z minus z1 z minus 3 divided by minus 3. ऐसे आएगा.
स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली नोट करो, सिंप्लीफाई करो डिटर्मिनेंट, सॉल्व करके ये आ गया, दिस इज रिटर्न एज 2i माइनस 7j प्लस 4k डिवाइड बाय 2, ये हो गया पैरेलल वेक्टर, राइट्स इट्स वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन। आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो होगा ये कंप्लीट। अगर आंसर क्या मिला, फाइनल कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन, कार्टेशियन मिला होगा x माइनस 3/2 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन माइनस 7 z माइनस 2 अपॉन 4, ये फाइनल कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन है। आ गया सब लोगों का। चलो नेक्स्ट वन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। We have given here two lines, but both are available in Cartesian form equation. Means in a solution, first one the given lines. Direction ratios of the lines are. First line के direction ratios theoretically A1, B1, C1. देखो हमने फॉर्मूला लिखा है। Tell me the value of A1, B1, C1. 4, 1, 8. But remember, we want a coefficient of x, y, z is the +1. Otherwise, first one simplify the equation. ये डायरेक्टली स्टैंडर्ड में है, सेकंड स्टैंडर्ड में है कि नहीं चेक करो। सेकंड वन चेक करो, A2, B2, C2. Tell me the value of A2, B2, C2. 2, -7 and 4. करेक्ट है। We know the formula of cos theta. क्या फॉर्मूला है? We know that cos theta equal to, what is the formula? A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon first root of A1 square plus B1 square plus C1 square, second root A2 square plus B2 square plus C2 square। सिंपल है कि नहीं? इसमें वैल्यू पुट करना है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है। चलो put the 1 by 1 values, simplify and find out cos theta equal to, एंगल मतलब फाइनली थीटा इक्वल टू cos को ट्रांसफर करो या डायरेक्टली वैल्यू मिलता है क्या वो चेक करो। cos थीटा इक्वल टू A1 A2, A1 का वैल्यू है 4, A2 का वैल्यू है 2 प्लस B1 B2 1 मल्टीप्लाई -7 C1 C2 8 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ A1 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, A2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। cos थीटा इक्वल टू न्यूमरेटर 8 -7 प्लस 32 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 64 प्लस 16 80, 80 प्लस 1 81 इंटू सेकंड रूट ये 16 प्लस 4 20 प्लस 49 69 ऐसे आएगा
cos थीटा इक्वल टू न्यूमरेटर 1 + 32 33 डिवाइडेड बाय ये क्या होगा 9√69। कुछ एडजस्टमेंट है क्या? कुछ एडजस्टमेंट है 69 का? नहीं है, राइट है ना? ये 2 का स्क्वायर 4 - 7 स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 20 + 49 69। 69 का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये √69 ऐसे आएगा। ये 9 1 जार सॉरी 3 3 जार 3 11 जार ऐसे हो जाएगा। और ये आ जाए 11/3√69 ऐसे होता है। थीटा का वैल्यू आएगा cos इनवर्स ऑफ 11/3 इंटू √69। ये थीटा आ गया। ऐसे हमें फाइंड आउट करना है। ये फाइंड किया हमने एंगल, राइट है कि नहीं? अभी सपोज अलग अलग क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ पर ये मैं बताता हूं। सपोज फाइंड लैम्बडा इफ द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। सपोज यहाँ पे लैम्बडा है माइनस लैम्बडा है एंड कंडीशन है लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब लाइन्स आर परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर रहा तो व्हाट इज द कंडीशन? a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इक्वल टू व्हाट? 0 0। कंडीशन राइट एंगल cos 90 0 ना, मतलब इक्वल टू क्या? 0। ये यूज करना होगा। अभी a1 a2 मतलब 4 2 जार 8, b1 b2 मतलब माइनस लैम्बडा, c1 c2 मतलब 32। अरे समझ में आ रहा है? इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? माइनस लैम्बडा ट्रांसफर लैम्बडा इक्वल टू 8 + 32 क्या हो जाएगा? 40। कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन कैसे भी चेंज हो सकता है। हमें यहाँ पे सपोज लैम्बडा कहाँ भी लैम्बडा दिया है, फाइंड आउट द लैम्बडा लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, मतलब a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इक्वल टू 0। यूजिंग दिस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट वन, सपोज ये लाइन्स हमें गिवन है, यही लाइन्स है। यहाँ पे गिवन था क्या था? -7 ऐसा कुछ तो था। ये लाइन्स गिवन है, एक्सप्रेस इज इन वेक्टर फॉर्म। अभी हमें वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। टेल मी दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में कैसे आएगा? r बार इक्वल टू I + 3j ऐसे होगा मेरे भाई, प्लस लैम्बडा मल्टीप्लाई 4i + j + 8 के। अरे कार्टेशियन ना, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1। x1 y1 z1 मतलब क्या है? 1 3 0। इसका पोजीशन a का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? a बार इज व्हाट? I + 3j के एब्सेंट है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन इज 4 1 8, दैट इज द पैरेलल वेक्टर। b बार क्या आएगा? 4i + j + 8 के। वी नो दैट वेक्टर फॉर्म इक्वेशन इज व्हाट? r बार इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा इंटू b बार। यही है कि नहीं? सिमिलरली टेल मी कन्वर्जन इन वेक्टर फॉर्म। r बार इक्वल टू 2i + j वेरी गुड प्लस म्यू या लैम्बडा, कोई तो कांस्टेंट है, बोलो। 2i - 7j प्लस कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें कन्वर्जन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन अंडरस्टैंड होना चाहिए। वेक्टर टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू वेक्टर, ये समझ में आना चाहिए। ओके, ये दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। ये लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर होता तो हमें पैरेलल वेक्टर ढूंढना है। पैरेलल वेक्टर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर, बट परपेंडिकुलर लेना है तो ओनली यूज द डायरेक्शन रेशियोज, नॉट यूज पासिंग थ्रू द पॉइंट। मतलब आईजे के डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में आईजे के, सेकंड रो में आएगा 4 1 8, थर्ड रो में आएगा 2 - 7 4।
बस ये बेसिक कंसेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। हमने यहाँ पर कार्टेशियन टू वेक्टर कन्वर्ट किया। सेकंड वन आल्सो सेम वे, सपोज लैम्बडा रहा तो लैम्बडा फाइंड करना है, एंगल रहा तो एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है वो देख के हमें कन्वर्जन आना चाहिए। क्लियर हुआ है? चलो राइट द नेक्स्ट वन। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। Find the angle between the lines. R bar equal to 2i minus j plus lambda in bracket I plus 2j minus k, and R bar equal to I plus 2j plus 3k plus mu in bracket 2i minus j. ये दो लाइन्स गिवन है, हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन द लाइन। राइट है कि नहीं? चलो बोलो, फाइंड करो। cos थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। फर्स्ट वन द गिवन इक्वेशन, ये गिवन है। कंपेयर किससे हो रहा है? आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, एंड सेकंड आर बार इक्वल टू ए बार प्लस म्यू बी बार। इससे कंपेयर हुआ है। ये पैरेलल वेक्टर है, ये भी पैरेलल वेक्टर है। हमें पैरेलल वेक्टर मतलब डायरेक्शन रेशियो चाहिए। वी नो दैट, देयरफॉर A1 B डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 इक्वल टू, टेल मी द वैल्यू ऑफ A1 B1 C1। A1 B1 C1 का वैल्यू, अरे ये ए बार मतलब पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पैरेलल वेक्टर चाहिए हमें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्शन रेशियोज मतलब ये लैम्बडा मल्टीप्लाई क्या आएगा? 1 2 -1। सेकंड लाइन इज अ पासिंग थ्रू, ये पासिंग थ्रू है, बट डायरेक्शन रेशियोज क्या आएगा? 2 -1 0। समझ में आया? वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ एंगल मतलब cos थीटा का फॉर्मूला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन फर्स्ट रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, सेकंड रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ऐसे मिलेगा। राइट है कि नहीं? चलो हरी अप, फास्ट। सपोज आपको वेक्टर मेथड से सॉल्व करना है तो लुक हियर, ऐसे करना है। फर्स्ट लाइन इज कंपेयर टू दिस, सेकंड वन A2 बार प्लस म्यू B2 बार। ये वेक्टर में फॉर्मूला है cos थीटा का, cos थीटा इक्वल टू B1 बार डॉट B2 बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2 बार। ये हमने स्टडी किया है ना, cos थीटा इक्वल टू A बार डॉट B बार अपॉन AB। अभी ये ए बार बी बार मतलब ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में है, ये कार्टेशियन फॉर्म में। आपको जो इजी लगता है वो मेथड से आपको सॉल्व करना है। समझ में आया? चलो सॉल्व करो, फाइंड आउट द एंगल। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ओरली आएगा। फाइंड द एंगल। मिल गया क्या आंसर? थीटा का वैल्यू 90 आएगा। अरे देखो यहां पर ही बता देता हूं मैं, ये एंगल के लिए हमें ये यूज करना है डायरेक्शन रेशियोज। 1 इंटू 2 क्या होगा? 2 प्लस 2 इंटू -1 -2, 2 -2 0 प्लस 0 इंटू -1 0। मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। मतलब थीटा का वैल्यू आएगा 90 डिग्री। समझ में आया? आप ऐसे भी सॉल्व किया तो भी आएगा, ओरली यहाँ पर भी आंसर आता है। एंगल 90 डिग्री है। इक्वेशन कार्टेशियन में हो या वेक्टर में हो, हमें प्रॉपर कन्वर्जन आना चाहिए। इसके पहले जो सम देखा वो हमने कार्टेशियन इक्वेशन गिवन थे। अभी यहाँ पे जो गिवन है वो वेक्टर फॉर्म इक्वेशन है।
कौन से फॉर्म में? सिर्फ हमें कंपेयर करके डायरेक्शन रेशियोज यूज करना आना चाहिए। डायरेक्शन रेशियोज मतलब लैम्बडा या म्यू, मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई ब्रैकेट जो है वो डायरेक्शन रेशियोज है। ये पासिंग थ्रू द पॉइंट है। फर्स्ट लाइन इज अ पासिंग थ्रू 2 - 1 0, सेकंड लाइन इज अ पासिंग थ्रू 1 2 3। हमें ये यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है लैम्बडा मल्टीप्लाई या म्यू मल्टीप्लाई, उससे हमें एंगल मिलेगा। राइट है? चलो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। रिवाइज करो घर पे अच्छी तरह, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। बेसिक बेसिक फॉर्मूला हमें पता चाहिए। कौन कौन से पॉइंट हमने लाइन में स्टडी किया? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर। सेकंड, लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, करेक्ट है ना? थर्ड वन, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स। नेक्स्ट वन, स्टडी द फॉर्मूला ऑफ एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स। नेक्स्ट वन, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, एंड लास्ट वन, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन्स। बस इतने पॉइंट हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइन्स, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स। ऐसे अलग अलग फॉर्मूले हमें देखना है, डिस्टेंस के बारे में हमें स्टडी करना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।